पढ़ते जाते हैं जाने क्यों शब्द मेरे, उसकी तारीफ ज्यों ज्यों बयां करता हूँ। कहता तो बहुत कुछ उसके लिए, लगता है कुछ कम बयां करता हूँ। बांका सा, सजीला सा और कुछ लजीला सा हमारा आज का मेहमान किसी सपनों की दुनिया के राजकुमार से कम नहीं। मिलिंद सोमन। Thank you for coming. Milind, I was just surprised कि आप swimmer थे. You were a champion of national level. Yeah, actually I represented Maharashtra from the age of 10. जी. फिर 14 साल मैंने महाराष्ट्र को represent किया. And I was national champion from 84 to 88. उसके बाद मैंने सोचा कि I also did engineering side by side. लेकिन engineering में actually मुझे दिलचस्पी नहीं थी because I had to study. And ज़बरदस्ती मतलब I come from an academic kind of background. In the 1986 Asian Games, मेरी जो relationship थी swimming federation के साथ वो काफी खराब थी. So even though I was national champion, national record holder, I had made the qualifying timings for the Asian Games. They didn't send me. So that was a bit of a traumatic experience for me. So I wasn't keen to continue. I didn't have that drive left anymore. Since I had done engineering, I would continue with in the same field, but something to do with the water. So मैंने scuba diving करना decide किया in America. But before I left, there was this friend of mine, Bijoy Jain, who is now an architect. He came to me and he said, you know, I'm going for this meeting as a model, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा. So will you go instead of me? Because we look. At that time, we looked similar. Achha. He's much better looking, but at that time we looked similar. Very modest, yeah. No. And then I went for the meeting. They said, "नहीं, you're too young to wear a suit." It was for some shooting campaign. So I said, "ठीक है." I didn't know anything about modeling. घर वापस आया. एक महीने के बाद Rasna Behel called me, who was at that meeting, and she said, "Do you want to model?" I said, "Okay, I don't know. What is it?" She said, "There's a campaign called Thakase Fabrics, and for 2 hours, you have to just change different shirts और आपके photos लिए जाएंगे." That's great. तो मैंने कहा, "आप पैसे देंगे?" तो उसने कहा कि हाँ, कितने चाहिए? So I said, पिछले साल आपका campaign किसने किया था? So she said, Rahul Roy. So I said, अच्छा, तब आशिकी release नहीं हुई थी. So I didn't really know Rahul Roy. But I said, ठीक है, कितने पैसे दिए थे उसे? So she said 35,000. So I said 35,000? That was a lot of money for 2 hours. So I said, you pay me 50,000. So You're a smart guy. she said, okay. ले जाओ. Smart chap. I could not refuse that. I mean, that was something that, I mean, somebody really stupid could have said no. But that must be a really golden moment of yours, ना? लेकिन हमने सुना है you were made in Scotland. That's true. I was born there. My mother was studying biochemistry at that time. और my father was working as a scientist. भाभा में थे ना वो तो? वो भाभा में थे after coming back to India. So when I was about 7, my family decided to come back to their roots. And अच्छा, आपके बारे में एक खास खबर है कि आप बहुत सारे पेट्स रखते हैं और कुछ एनिमल्स और रखता था पहले. Actually, now I have become so busy that I'm not able to. Yeah, and my mother also has started traveling after retirement, so she's hardly ever at home. But I had lots. I had dogs, cats, pigeons, tortoise, turtles, lizards, mice. I mean, I had a eagle once. Lots of pets. एक आपकी खास पेट है, वो आपसे मिलने आई हैं. बुलाएं? नहीं. आइए. बुलाना पड़ेगा.
पहले इसकी शिकायत करूं? मैंने कहा कि आपके खास पेट आई हैं तो बुलाऊं या नहीं, तो कहता नहीं। बचपन में आप लोग पैम्पर करते थे या आप तीनों एक साइड होके बुली करते थे? बुली करते थे। तीनों? No, नहीं, not सच he बोलो। used to bully me. I'm the youngest. देखो अब And सही my, क्या and my है? elder sister used to bully all of us. He was very, very shy as a boy. क्या And बात कर still, रहे हैं आप? still very, very shy. completely unlike. Except with girls, ना? No, he was always a ladies' man. I mean, at the age of 10, it had been predicted. Somebody had read his palm in Patiala, remember? And told my mum that this guy will never lack for female company. Never. Never. Lucky you. And from the fisherwoman to you name it, he had things to say to them and talk to them. ये आप तो आज की बात कर रही हैं, जब ये छोटा सा था 6-7 साल का, तब भी इसकी एक कुछ जैसे क्रश कहते हैं या भोला भाला प्यार कहते हैं। रिमेम्बर वो लड़की जो स्कॉटलैंड में बहुत थी? छोटी थी उस वक्त। क्या I'm younger than him. तो आपको किस्सा तो मालूम होगा? No, but मुझे जो याद है, his first girlfriend, well, if you can call her a girlfriend, when we came to India, was the 70-year-old woman Oof. called Mrs. Pays. And he used to sit in Shivaji Park with her dog and talk to her for hours about what I don't know, but... What about Anne? You remember Anne? Yeah, I remember said? Anne. Oh, you were too young. She was from school. She was in school with me, a Scottish girl, and we were very much in love. And we also kissed once. I remember. At what age? किसे बोलो? 6. 6 में? And a sweet kiss, like they show on those greeting प्यारा cards. That भला one of those. Scary. I have an 8-year-old son. I better keep an eye on him. एक और खास one very important lady in your family, In my family, आपकी जिंदगी में, जिंदगी में. वो कुछ कहना चाहेंगे आपसे? अच्छा, कौन? देखिए। Hello, Milind. Wish I could have been there. You've been a good son most of the times, that is. Trying sometimes, but caring also. But I wouldn't have you any other way. You know, I'm very proud of you, and I'm confident that you will succeed in whatever you do. Lots of love and God bless. Netra, Medha and Devashish wish you were here, and they send you lots of hugs and kisses. Bye, son. बचपन की आपकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, लेकिन बहुत कम है क्योंकि आप बहुत शाई थे ना, कैमरा भी के सामने भी नहीं I आते। don't remember any pictures of me as a child, and I hope you haven't got them. हैं हमारे पास? हैं तो दिखाइए प्लीज, अगर हैं तो। Yeah, I got them. That's so sweet. ये नहीं, look at this, look at this, look at this. That's a That's a turtle. turtle. That's a turtle. Where? हाँ, In अच्छे his से हैं, hand. turtle. This turtle bit me. I have a scar here. Oh my God, you kissed the turtle also. No, the turtle. ये See. Where am I? There with the red circle. Okay. swimming champion. See, now you know why I was shy. Look at me. I had to be shy. Isn't that क्यों? nice? क्यों? वेलकम बैक। अभी हम मिलन से पूछ रहे थे उनकी बचपन की भोले भाले प्यार के बारे में, इनकी बहन भी बता रही थी। अच्छा, सुना है आप बचपन से क्रश मतलब वहाँ तो स्कॉटलैंड में ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ आए तो एक और लेडी थी जिनके ऊपर आपका बहुत प्यार था, जिनके क्रश था। बहुत सारे थे। कौन है ये? अब आप देखिए और खुद पहचानिए कौन थी। Hello, Milind. You better get a very close look at me. I'm not wearing my glasses. I was your teacher in Standard 8th. I was Miss Rebello then, now I'm Mrs. Pradhan. I used to really admire the time when you used to walk along the corridors, a sandwich in one hand, your book in the other. Neither would the sandwich fall nor the book. You were so engrossed, it was as if it was a matter of routine. I also remember the time when you used to get locked in a verbal battle with one of your friends. You used to be so calm and composed, even though the other boy used to get so agitated.
Your teachers were very proud of you then because you were a swimming champ. Even today, we are very proud and happy for you because you have made it so big in the glamour world. Milind, we are with you all the way to the top. We wish you good health, peace of mind, happiness, now and always. I was at the hugest crush on her. Yeah, she came to teach us moral science. And कितना moral सीखा है? slim and curly hair down till here and absolutely like an angel. Oh my God, romantic guy. Priscilla. 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 अच्छा, तो एक और शख्स है जिनकी आपने टेक्निक कुछ ठीक की थी, उसको आपने कहा था क्या तू डब्बा स्विमिंग करता है यार? अच्छा? वो कहते हैं आपने उसको काफी कुछ टिप्स दी और वो बहुत लोगों को मैं टिप्स रोज टिप्स देता हूँ। ये तो ऐसा बहुत बड़ा करो, ऐसा problem तो है। क्या कर रहे हो? देखिए वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाय मिलिंद, विनोद, काय म्हणतो? खूप दिवसांनी भेटला. स्विमिंग नाही करत? बर, माझं तर स्विमिंग चालू आहे. तू जेव्हा भेटला होता तेव्हा काय बोलत होता मला? 87, 88ला डब्बा स्विमिंग आहे ना? माझं स्विमिंग चालू आहे अजून. तुझी स्टार्ट डाय खूप छान आहे. तू जे शिकवतोस ना त्याच्यामुळे तर मला एवढं इम्प्रूव्हमेंट मिळालं. एवढं प्रोत्साहन तुझ्यामुळेच मिळतं. आणखी काय? बर, चल भेटू पुन्हा. ये स्विमिंग पूलला येत जा. हा, चल येऊ. ये. ओके. आणखी जाडा झाला जाड्या. आपको हमें हिंदी में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्या कह रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने उनको बहुत अच्छा सिखाया, उनका स्ट्रोक बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत खराब था और बहुत encouragement बहुत दिया। encouragement दिया और मुझे डांट रहे हैं क्योंकि मैं आजकल स्विमिंग नहीं करता। इनफैक्ट 14 सालों से मैंने स्विमिंग नहीं किया। अच्छा, एक और स्विमर हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। देखिए क्या कहती हैं। Hi Milind, this is Anita. I'm sure you're surprised at your own success when you look back all those years when we used to swim together and all the hard work you put in and sometimes not so hard, all the endless breakfasts, the early mornings, all the workouts with making sure we did the right things. I'm sure you never ever thought you'd be acting and maybe the modeling part of it, but not the acting. And I'm sure you gave all of us in the swimming world a big surprise when you started acting, and the fact that you're continuing. From what I hear, you're even thinking of producing your own movies. That is really cool, and I'm glad that you're doing something totally different. And I also believe that you swim on and off. I just wanted to wish you all the very best with the future. And hope your movies are a success. Bye. अनीता सूद, जी, I was आपके लिए एक मैसेज है। anything? हाँ, क्या मैसेज? आप पहले आप बताइए। नहीं, मैं कुछ यहाँ भी कुछ क्रश है अगेन। Well, I was in love with her from the age of 12 Oh my God. till the age of 17. हाँ, From the age of 12. She was India's greatest swimmer at that time. सारे swimmers के लिए वो एक आइडियल थी कि इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरह से डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो इंस्टेंटली मेरे लिए तो शी वाज इट, द वुमन ऑफ दैट टाइम। उनका एक मैसेज है आपके लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाई आपके पास क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और सेकंड बेबी के लिए आपको हमने मुबारक देना है, तो इसके जरिए दे सकते हैं आप कैमरे के थ्रू। Anita, thank you very much for your message. I'm glad that you still remember me and think of me sometimes, and I'll never forget all the times that we spent together. And congratulations for your second baby, and I hope that you're happy always. I hope to see you soon. सरप्राइज गिफ्ट है ये।
From? आपको खोल, आप देखिए तो सही है क्या, और हमें भी बताइए। बहुत सारा रहता है। हाँ, इसलिए जरा बहुत मुश्किल है। कीमती चीज लग रही है। बिल्कुल, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कीमती है। ऑल द बेस्ट कह रही हैं सब लड़कियां। एवरीबॉडी सरप्राइज है क्या इसमें यार? It's a shirt. क्या है ये? आपके लिए पहचानने के लिए दी गई ये है क्या? किसकी है, क्यों है, क्या है? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा? नहीं तो? अच्छा, कुछ तस्वीरें देखे तो पहचान लोगे कि या नहीं? या मैं हिंट दूं? If they're embarrassing, I don't want to see them. Okay. ये क्या है? Shirt है। इसके पीछे लिखा है कुछ 50,000। चलिए तस्वीरें देखते हैं, फिर पहचानिए क्या चीज़ It's है। one of the. Don't show me those pictures. Oh God. It's one of the Thackeray Yeah, I shows. think so. This one. No. सेम है ना शर्ट? I can't see, but यही it could shirt be. है। यही शर्ट है? बिल्कुल। That's amazing. आपको कहाँ मिली? ये सब जीना इसी का नाम है भाई। Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. This is a memory. अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है अभी कि आप एक फ्रेंड बोलो या एक कलीग बोलो या एक शख्स को कहते हैं, उससे आपने कुछ डांट दिया था, बोले मैं आज के बाद कभी तेरे साथ काम नहीं करूंगा, झगड़ा हुआ था। सुनीत। सुनीत? हाँ। सुनीत बोला है उसे? सुनीत! उसने कहा था कि मैं कभी काम नहीं करूंगा। बहुत घटिया शो है इसमें बता। हाय सुनीत। हाँ, ये बताइए कि आपने फिर दोस्ती की कि नहीं? अभी झगड़ा भी चल रहा है। क्या हुआ था कि इनकी बहुत एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल एक पैंट थी जो मैं जूते के ऊपर से चढ़ा रहा था। जूते के ऊपर नहीं, अपनी जीन के ऊपर चढ़ा रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा मिलन अपनी जीन उतारिए, फिर इसको ट्राई करिए। ऐसे नहीं कहा था। कैसे कैसे और क्या कैसे? मैं कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तुम शो करो, उसके बाद मैं देखना भी नहीं चाहता था। बट आफ्टर दैट एवरी ईयर आई हैव डन ऑल हिज शोज एंड व्हेन आई स्टॉप मॉडलिंग आई हैव बीन फॉर ऑल हिज शोज, एवरी सिंगल वन ऑफ हिज शोज। एंड But I will tell you why we ये stopped doing आपकी जो shows. लेजी वाली बात हो रही थी, एक सेकंड, आप ही बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप हमेशा लेट आते थे और कभी कभी नहीं भी आते थे, आते भी थे तो कभी स्विमिंग। मैं आपको बताऊं, मैं उन दिनों में मैं और रवि बजाज हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, हम लोग शोज किया करते थे एक साथ करके। इट वाज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मैं हमेशा चाहता कि मिलन हमारे शो मेरे शो में करें, और रवि को इनकी इतनी खास वो नहीं थी शायद। तो एक बार मैंने रवि से बहुत कहा कि भाई मेरी इंस्पिरेशन ही मिलन सोमन है, तो इनको तो फिलहाल ज़रूर होना होगा शो में। तो पहले फ़िलहाल तो उन दिनों में मॉडल 3 दिन पहले आते थे शोज़ के लिए, तो इनकी कोई ये तो लापता थे, कोई खबर ही नहीं थी इनकी। फ़ोन उठाओ, कहाँ हो मिलन, कहाँ हो, कोई खबर नहीं। फिर आते आते सब लोग आ गए, इन्हें अपनी फ्लाइट मिस हो गई। तो रवि बजाज मुझे बोलेंगे तुमने कहा था मिलन सोमन को। मैंने कहा चले आए तो कोई बात नहीं, फिलहाल दूसरी फ्लाइट में आ जाएंगे। मैं एयरपोर्ट गया इनको लेने के लिए, चले महाशा तो आ गए प्लेन से, लेकिन कोई सामान वामान नहीं था। कभी सामान लेके जाते नहीं, कुछ सामान ही नहीं था। मैं कहा ओहो सामान खो गया, रवि बजाज मेरा जान खाएंगे कि जूते नहीं है, जराबे नहीं है। तो आई सेड कि मिलन वेयर इज योर स्टफ, व्हाट इज द लगेज यू ब्रॉट? यूं हाथ डाला जेब में, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। दिस इज माय, आई हैव कम फॉर योर शो। और वो दिन था और आज का दिन है, रवि बजाज ने कभी शो नहीं किया मेरे साथ। So, कुछ आपके मॉडलिंग की झलकियां देखते हैं। वेलकम बैक। देखते हैं ग्रीन रूम वाले सवाल, इसका जवाब आप दे पाएंगे कि नहीं। एक शख्स का कहना है कि वो आप कभी अपना पॉकेट में पर्स कैरी नहीं करते थे, वॉलेट, और आपको लड़ाई झगड़ा हो जाता था। ये क्या है? डांटा वाटा भी था उन्होंने। लड़की है लड़का ये नहीं बताऊंगा मैं।
लड़की हो सकती है। लड़की हो सकती है। बचपन से क्रश क्रश क्रश, लेकिन ये कौन है? देखिए अभी उनको बुलाते, वही आपसे आंसर आपको देना पड़ेगा, या पहले बुलाऊं? बुलाइए। आइए प्लीज। You're screaming of your life, so you're not carrying on. Isn't she beautiful? दीपानिता, Okay, ये क्या बात है? इन्होंने पहचानने से आपको इनकार कर दिया। मैं तो बहुत लड़कियां डांटती ही कहते हैं। नहीं, ये मिलन सोमन है। आपको और भी मजेदार बातें बताऊंगी मैं इनके बारे में। प्लीज। प्लीज नो। नहीं पहले वो, हाँ। He's a spoiled brat. Spoiled brat. Most irritating person in the Most whole irritating world. person in the whole world. बहुत परेशान करते हैं। चॉकलेट्स के लिए हमेशा लड़ते हैं। He's always stealing my chocolates from my fridge and eating. But even then, he's one of the most lovable person I've ever met in my life. Dennis the Menace है एकदम ये। Completely. Oh my God, yes. वॉलेट वाला क्या झगड़ा था? वो अभी रह गया, मैं छोड़ूंगा। वॉलेट वाला तो हमेशा झगड़ा रहता हमेशा है। अभी तक सुधरा क्रेडिट कार्ड नहीं भी है। कैरी नहीं करते। No, that is his best thing. कहीं क्या कहते हैं, पान की दुकान में भी जाएंगे, लेकिन मैंने कार्ड तो कैरी किया था। कार्ड नहीं लेते हैं पान की दुकान में। So yes, that's his worst habit. कभी नहीं करते। वॉलेट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वॉलेट अच्छा नहीं लगता, पैसे लेकिन नहीं अच्छे। पार्टी बहुत पसंद है ना। पार्टी करते भी हैं, पार्टियों में जाते भी हैं। बहुत पार्टी लव्स पार्टीज, राइट? पागलों की तरह नाचते भी हैं। पागलों की तरह नाचते भी हैं। देखिए भैया। नहीं, completely. अच्छा, पागलों की तरह इनका नाच जो है और पार्टियों का जो शौक है, इन्हें याद है आपको 1995 का आपका 31 दिसंबर नाइट कैसे गुजरी थी आपकी? रात भर कहीं ढूंढते ढूंढते चले गए। किसके साथ थे आप? पार्टी ढूंढते हुए, सुना था कहीं गोवा में। ठीक है, मैं आपकी याददाश्त आपको याद ताज़ा कर देता हूँ। आपके दोस्त को बुलाते, आइए प्लीज। I'm going to slap you. लड़की है भाई। ये लड़की ऐसी गंदी लड़की कभी जिंदगी में नहीं देखी। Hi, Melin. So you're in Nasik? Huh? I'm in Nasik. How's the weather in Nasik? सुबह यहाँ आ जाओ। आपसे बात बाद में करूँगा, पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल। Now I remember 95 December. Now you remember? ये कौन है? याद आया कि नहीं अभी भी? याद है। Is that wrong? Amazing. आपके दोस्त को 1995 की दिसंबर 31 की शाम जनवरी याद नहीं, जरा आप याद दिला दीजिए। सर हम लोग 1995 में गोवा में थे और रात को 12 बजे 11:30 बजे मिलन बोला कि सुबोध हम लोग एक पार्टी में जाते हैं। आई सेड कहाँ है ये पार्टी? इसे मैं सुना हूँ कि ये कोई पहाड़ के ऊपर पार्टी है। आई सेड आप जानते हो वहाँ के जाने कैसे जाना, मतलब उसका रास्ता क्या है, कैसे जाना है? एड्रेस नहीं मालूम। एड्रेस नहीं मालूम है। ऐसे नहीं, सुबह चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग गए गाड़ी को और एक फेरी में लेके, और गाड़ी को फेरी में चढ़ाना पड़ा। 15-20 मिनट का, रात को 12:30 बजे फेरी जा रही है, कोई दूसरे बीच पे ही ले गई। वहाँ पे अंधकार, ना कोई लाइट, ना कोई रास्ता। हम लोग सब डरने लगे। गाड़ी आगे लगने लगी। फिर कुछ मिलन बोला बस यहाँ रुको। वो हम लोग ने गाड़ी रोका वहाँ पे सर, और झाड़ियों के अंदर से 2 फिरंगी लोग निकले। तो मिलिंद उनके पीछे भागा, जैसे मतलब उनके भाईचारे हैं, और बोले ये पार्टी कहाँ है? तो वो सब पता नहीं किस नशे में थे, बस ऐसे ऊपर हाथ किए, तो बोले बस मेरे को पता है पार्टी यही है। तो वही झाड़ी के अंदर हम लोग सब घुसे। एक लड़की हमारे साथ थी, बहुत डर गई वो। बोली कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे पापा डांटेंगे। तो मिलिंद बोला क्या मेरे पापा डांटेंगे, चलो मेरे साथ। कोई वापस जाने की रास्ता नहीं है। अंदर घुसे तो एकदम अंधकार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और ये तो आधा अंधा है ही, दिखता नहीं है। तो ये बोला मैं दिखाता हूँ आगे कैसे जाना है। तो हम लोग बोले बस अभी तो रात गई हमारी। हमारे दोस्त का विजिटिंग कार्ड लेके, लाइटर लेके, वो कार्ड जला के रास्ता देख रहा था। सारे कार्ड खत्म कर दिए। सारे उसके विजिटिंग कार्ड खत्म हो गए। बोले सुबोध तुम्हारे पास पैसा है? ऐसे क्यों?
I said नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा चलाने के लिए आपको रास्ता देखने के लिए. Anyway, to cut the long story short, हम लोग पूरी रात चलते गए. जब हम पहुंचे and the sun was rising, there was this huge cloud of dust. Yes. And in that, these people were dancing and the music, it was almost magical. एक मैजिक और भी है, आपने जो आपकी हरकत याद आ रही है मुझे. क्या? एक और सनसेट भी था, एक और सनराइज भी थी इनकी शादी में. सुना शादी में You have आपके no रूम में सो गए थे जाके. You have no shame. This is वो दोनों के बीच में ये तो आज तक मेरी फैमिली मेरे को ये फॉरगिव नहीं करी है. मेरी बिल्कुल नहीं कर सकती. शादी के बाद रात को पार्टी हुई. ये 1993 की बात है. और पार्टी के दिन रात को सब शैंपेन हो रहा था, वाइन पी रहे थे. रात भर मिलिंद गा रहा था, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है. शादी वादी सब हो गई और हम सब घर गए. तो पता चला मिलिंद पीछे हमारी गाड़ी में लेटा हुआ सोया हुआ था. तो मैं बोला मिलिंद तुमको घर छोड़ दूं. ऐसा ना कोई घर पे नहीं है. ऐसे मोटिवीन कोई घर पे नहीं है. एनीवे रात को ये ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि रात को ये हमारे साथ ही रूम में सो गए. और सुबह क्योंकि रात को इतनी लेट हो गई, सुबह हम लोग उठे और मैंने दरवाजा खोला. सब लोग वेट कर रहे थे कि नया दूल्हा दुल्हन आएंगे. पहले मैं निकला, फिर मिलिंद निकले. और फिर चलिए पूछते हैं मिलिंद से अगला सवाल, देखते हैं ये सही जवाब दे पाते हैं या नहीं. आपके कई दोस्त हैं, कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई लाइफ में, लेकिन एक ऐसे शख्सियत है जिसने आपको पहली बार कार में मुलाकात हुई और काफी अच्छी दोस्ती हो गई. फर्स्ट टाइम. कौन है ये? बूझो अभी. नीरजा. नीरजा. Thank you. How are you? They haven't been in touch only with me. वेलकम नीरजा. आप ये बताइए जो आपकी मुलाकात इनसे गाड़ी में कैसे हुई और आपने इन्हें कहाँ देखा? मतलब आप गाड़ी चला रही थी और ये पीछे बैठे थे? हाँ, एक्चुअली हमारी एक कॉमन फ्रेंड है जो मॉडल कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी. तो वो मुझसे मिलने आ रही थी. एंड शी सेड आई हैव टू पिक अप समबडी फ्रॉम द ताज. So will you take the car from that side? So I said, sure, I'll take the car. So I went there and this person walked out. So I didn't look at the back because I didn't know who it was. So I got into the car and Nima says to me, just Nijaba, just have a look at this guy because ये model करने वाला है. कैसा रहेगा ये model? तो मैंने कहा I can't see his face. पीछे उसको बोलो कि मेरे rear view mirror में अपना चेहरा दिखाए. तो यूं करके बड़े स्टाइल से उन्होंने अपना चेहरा दिखाया. So I said, हाँ, अच्छा करेगा. That was my first meeting with him. That's great. You have not given them pictures. What pictures? Any pictures? तो फोटो नहीं देने उन्होंने कुछ. नहीं. लेकिन ये आपके साथ मतलब इतनी दोस्ती हो गई कि फिर आपके बच्चे को उन्होंने स्विमिंग पूल में फेंक दिया था. हाँ. ये क्यों फेंका Actually था? फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये स्विमर है. तो मैंने कहा वो मेरा बेटा स्विमिंग सीखना नहीं चाहता है. मैं सिखा दूंगा. अरे तुम लोग ऐसी बात करते हो, कभी तुम फोन ही नहीं कर. नहीं मैं मद्रास जा रहा हूँ, मैं वापस आके फोन करूंगा. एंड केम बैक एंड रैंग मी अप नेक्स्ट मॉर्निंग. वेयर इज योर सन? आई विल टेक हिम स्विमिंग टुडे. ले गए स्विमिंग. उसके बाद से he swam, my son. काम की बातें याद रखते हैं ये? थोड़े बहुत. अच्छा ये आपने क्या लाया ये? इसको पैम्पर करना पड़ता है हर दम. क्यों? क्योंकि खाने के लिए. मैंने इसको. क्या है? Yes, stuffed chocolates. You have to pamper him with marzipan. ओहो, मतलब ये सुना है ये गाता भी है, खाता भी है. अभी पहले खाने का मैं बस ब्रेक में लेता हूँ. मैं अभी खा सकता हूँ, आप दोनों बात. नहीं आप अभी खाइए, मुझे दीजिए. ये डब्बा खत्म हो जाएगा, शो करने दीजिए मुझे. अच्छा ये बताइए कि आप कभी कभी इनसे फोन पे बात करती हैं तो ये उधर से हेलो आप बात करती है, गुनगुनाता जाता है. बात करो. यू आर हैविंग दिस इंटेंस कॉन्वर्सेशन. लंबी बातें तुम्हारी चल रही है और ये उस तरह. मिलिंद तुम सुन रहे हो? सिंगिंग अवे. बट ही सिंग्स फैबुलसली. वेलकम बैक. अब की बार मैं सवाल नहीं पूछूंगा बल्कि कोई और सवाल पूछेंगे आपसे. इज इट ओके? No.
Please ask the question. मिलिंद, What? तू कसा आहेस? मी अगं बाई ससा आहे. ससा ससा कुठे आहेस तू? ससा आलाय. आहे इकडे. आय एम सॉरी. टेलीफोन पे मैसेज आने वाला है. आय ची स्टँडिंग वर आहे. ससा हाय. तुला माहिती नव्हतं ना? खरंच माहिती नव्हतं. मला कसं कळणार? बावळट. वेलकम 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 सोनाली. आप ये बताइए, आप मराठी में क्या कह रही थी? बोल रही थी कि वो कि मैं ससा. बस ये बोल रही थी मजाक. एक आपको जो बोर करते हैं सवाल पूछ के. इस ये सवाल में मराठी में सवाल. बहुत मजेदार एक कहावत है. आपसे कोई पूछता है अगर कि मैं आपको ये कहानी बताऊं तो उसका जवाब हाँ या ना होता है. तो आपको मैं पूछूं? हाँ पूछिए. यू डू इट ना. हाँ पूछिए. क्या पूछूं? पूछ. दैट इज द स्टोरी. क्या पूछो? तो क्या है मराठी में, क्या है वो? मराठी में बोलते हैं कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू. थोड़ा धीरे. हाँ. कापूस कोंड्याची गोष्ट सांगू. गोष्ट सांगू. हाँ. गोष्ट सांगू. उसका आंसर भी वही है. अच्छा, वेरी इडियोटिक थिंग. या मैंने सुना आपको ये काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं और कोने में बैठते हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े सीरियस आदमी हैं और काफी लड़कियों इनके पीछे फिरते रहते हैं. आपका कुछ क्या कहना है? मतलब सब इनकी बहुत तारीफ कर चुके हैं, बट आप कुछ असली बात बताइए. नहीं, आप और तारीफ कीजिए प्लीज. आई वांट टू लाइक दिस शो. आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई लीव फ्रॉम हियर. नहीं, मैं सच बताती हूँ, मैंने मिलिंद के बारे में काफी कुछ सुना था. मैं इनसे मिली हूँ अग्निवर्षा के शूटिंग के पहले दिन. तो उसके पहले काफी कुछ सुना था कि वो ऐसे हैं, कैसे? बात नहीं करते हैं, या तो काफी एटीट्यूड है और हाँ थोड़े रंगीले भी हैं. वो तो है. तो मैंने सोचा देखते हैं अभी क्या है. तो मेकअप रूम में पहले दिन जब इनसे मिली तो आई वॉज डूइंग माई मेकअप और मिरर से मैंने मिलिंद को आते हुए देखा. तो मैंने मन में कहा था, मिलिंद तुला माहिती नहीं है, तो मैंने कहा था कि देखते हैं, अभी आ गए ये एक मॉडल टाइप एक्टर, अभी देखते हैं हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म एंड ऑल. कैसा किया परफॉर्मेंस? या विद मी. लेकिन कैसा रहा परफॉर्मेंस इनका एज एन एक्टर? बहुत अच्छा रहा. ही डेफिनेटली इम्प्रेस्ड मी. नॉट ओनली मी, मैं कौन होती हूँ, लेकिन पूरे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया इनका आरवसू. और हमारी यूनिट में बहुत सारी लड़कियां भी थी, तो वैसे भी मिलिंद खुश रहते थे. नहीं प्लीज इन तालियों के लिए आई मस्ट टेल यू समथिंग व्हिच आई फेल्ट अबाउट मिलिंद, दैट ही इज अ वेरी सेंसिटिव एंड सिंपल पर्सन. ही इज वेरी पोएटिक. I don't write poetry. Don't ask me to say any more. Ask him the way he writes his messages. They are really lyrical and very sweet. And SMS. Yeah. अच्छा, on the mobile. In Marathi. In Marathi. And आपसे एक मुझे बैठे मतलब एक थॉट आई, आपसे कुछ बात करनी सोच. जरा एक मिनट. हाँ जी. Again. नहीं, एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया. बताइए. जो प्राग का, जो मैं जा रहा हूँ. मैं यहाँ नहीं रहूँगा. नहीं. Please, let's all enjoy that. This is hilarious. Of course, let's all enjoy. Please listen carefully. एक 97 में हम लोग गए थे हॉलिडे पे. मिलिंद, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग रास्ते में मतलब प्राग गए. काम था मुझे वहाँ पे. प्राग एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है. तो रात को हम लोग निकले प्राग देखने. एनीवे चलते चलते हम लोग एक नाइट क्लब में गए. वहाँ पे मतलब वी वर सिटिंग एंड देयर वाज अ स्टेज वेयर सम गर्ल्स वर डांसिंग एंड वी वर सपोज टू वॉच. बट रात को मिलिंद का मूड आया कि मैं भी नाचूं. तो वो निकले स्टेज पे. मैं बोला कहाँ जा रहे हो? इसे नहीं, बस तू बैठ वहाँ पे, मैं आता हूँ. और वो गए और वो पोल्स हैं, आप कांटे के शो में देखते होंगे वो पोल्स जो उनके प्रीमियर में, उसी तरह से सोमन जी निकले और लटक गए उस पे और घूमना चालू किया. कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि इनका शर्ट भी बाहर है. और शर्ट निकाल के डांस कर रहे थे और वो पोल पे करके ऐसे घूम रहे थे जैसे पता नहीं कहीं बंदर से ट्रेनिंग मिली हो उनको. सब ऑडियंस इनके डांस के बाद ताली बजाने लगी. बोली ये कहाँ से आया है और चीज क्या है? बोले मेड इन इंडिया. इनके लिए कुछ लाई थी पूरे यूनिट के लिए, तो यही खा गए थे सारे के सारे. तो ये पुरान पोली है. इनके लिए
खूप खूप आवडतात. थोड़ा पण सा आपण आत्ता नको खाऊया. थोड़ा सा घी. हाँ. एक को स्टार यहाँ है, एक को स्टार यहाँ है, एक एक्ट्रेस और कुछ कहना चाहती हैं आपसे, वो भी सुन लेते हैं. कौन है? Hi, Milan. I'm really sorry I'm not there today. Tappad. And I really wanted to be there, but I guess the dates are a little bit hectic and I've been busy. But I really missed the show. What everyone, all of you who are watching the show don't know about Milan, that's what I'm going to say. Milan to me stands M for mischievous, I for intelligent, L for lovable, I for irritating, N for notorious, and D for a darling. He's like an angel. He's been there for me forever, and he's been a true friend. Milan is a person who's not judgmental. He takes you for the person you are, and I just want to tell him that I'm going to be there for him forever, no matter, even if we are not in touch, we'll be friends. He's an angel in disguise in my life. मिलन से उनके एक दोस्त ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें खरगोश कौन बुलाता है. कौन बुलाता है खरगोश? वो एक दूसरा खरगोश है. राहुल देव. राहुल देव. खरगोश. खरगोश. खरगोश देव. चलो कम से कम कुछ तो याद है. आओ आओ आओ. देखो इन सब के बारे में, इसके बारे में सबने बहुत सारी बातें बोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही बड़े लुच्चे हैं और बहुत ही ज़्यादा कमाल के आदमी हैं. और खूबसूरत तो हैं, भगवान ने कुछ ऐसा कुछ बना दिया है कि वो लड़कियाँ जब ये कहते हैं कि हाय आई एम मिलन सोमन, उनकी एक फेवरेट लाइन है, बड़ी मॉडेस्टी में बोलते हैं और जानते हैं कि वहाँ से रिएक्शन क्या आने वाला लड़की का. तो लड़कियों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ होता है उनका. तो ये एक, उसके बाद वो एक और परफेक्ट एक्ट है इनका. तो एक तो इन्हें कम दिखाई देता है, मगर उतने पास से तो बिल्कुल दिखाई देता है, मगर कहते हैं एक वो ऐसा एक रिएक्शन होता है, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, काइंड ऑफ थिंग वो है. मैंने क्या किया? और बाकी मैं देख रहा था सुबोध ने कुछ बोला, टूथब्रश लेके आए, किसी और ने कुछ बोला. लेकिन आप कुछ पोल खोलने वाले इनकी. तो मॉरिशस का एक था, हम लोग शूटिंग या पता नहीं किसी शोज वोज में गए थे, काफी पहले की बात है, 95 या 96 या 95 की शायद बात है. तो अब एयरपोर्ट आए हुए थे. एक तो ये आए लास्ट एज यूजुअल, एयरपोर्ट पे बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहाँ. तो कोई किस्मत की बात है कि पासपोर्ट ले आए थे. बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने कुछ किया कि भाई चलो पासपोर्ट बदले में. और एक वो लॉन्ड्री बैग होता है, जब आप होटल्स में रहते हैं ना, तो एक उनका वहाँ का एक लॉन्ड्री बैग होता है. उस लॉन्ड्री बैग के अंदर ना वो कपड़े देते हैं लॉन्ड्री के लिए. तो वो लॉन्ड्री बैग था, उसके अंदर बहुत दो कमाल की चीजें थी. एक था इनका हरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम और दूसरे थे इनके ग्लासेस. कहते हैं आई एम गोइंग टू मॉरिशस टू गेट अ टैन. तो मैंने कहा क्या वहाँ शो में भी तो ऐसे ही कच्चे में घूमने वाला है? कहते नहीं, वहाँ तेरे कपड़े पहनूंगा मैं. तो ऐसा कुछ है. लोग कहते हैं कि मिलन सुमन की बॉडी बहुत अच्छी है. ये पता नहीं क्या करता है, स्टेरॉइड्स करता है या ये कौन से प्रोटीन्स खाता है या कौन सी विटामिन पिल्स ऐसी बनी है जो ये खाता है. क्या खाता क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा, ये खूब वर्कआउट करते हैं, मन लगा के वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. उसके बाद में साथ में जो इनका पार्टनर होता है, अगर शोज वोज होते थे तो मैं साथ में करता था ट्रेनिंग. तो खुद तो करते ही हैं जो करते हैं, साथ में दूसरे वाले को भी खूब कराते हैं. उसके बाद जाते हैं एवरग्रीन, अगर दिल्ली में हो तो एवरग्रीन स्वीट हाउस, वहाँ से लेते हैं किलो काजू कतरी, आधी खुद खाते हैं आधी दूसरे वाले को खिलाते हैं कि मैं तो मरूं बेटा तू भी मर. तो ऐसा कुछ है इनका. और वही जो प्रोटीन्स हैं जो आप देख रहे हैं, रबड़ी, रसमलाई. इनको केक कैसा लगता है? चॉकलेट केक या केक? डज यू लाइक इट? मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. केक लाइए मिलन सुमन के लिए और दीपालिता शर्मा के लिए और राहुल देव के लिए. और आपको अच्छा लगता है कि नहीं केक? कल आपका जन्मदिन है, आप भी केक खाएंगे.
उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात में वक्त के समुंदर से यादों के कुछ और मोती बटोरेंगे, समेटेंगे। प्यारी बातों का, हसीन यादों का सफर यूं ही चलता रहे। दुआ कीजिए। खुदा हाफिज, शब खैर, नमस्कार।